The name was not there. They came like 4-5 years ago. Okay. उससे 1-2 साल पहले ना मुझे ये समझ में आया कि ऑडियो प्रोडक्शन में बड़ा कंफ्यूजन है. The way this podcast market is rising, the audio content market is rising. एक क्लाइंट को एक वॉइस भेज दी, बोला चूज करो. बोले चूज क्या करूं मैं. वन. जब घर पे रिकॉर्ड करने की बात आती है तो दो चीजें, फर्स्ट ऑफ ऑल द माइक्रोफोन एंड सेकंड द सॉफ्टवेयर, उसके बारे में आप क्या मतलब व्हाट वुड लाइक टू ऐड ऑन? नेवर, प्लीज प्लीज, आई मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, डोंट गो फॉर दीज नॉक ऑफ चाइनीज ब्रांड्स. वो पॉडकास्टिंग और सब चीजों के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है. दे आर वेरी इनएक्सपेंसिव, इजी टू यूज. फिगर्ड आउट अ फैंटास्टिक फ्री एआई सॉफ्टवेयर जो आपके रूम की नॉइस को मैजिकली निकाल देता है. Welcome to another episode of Voiceover Par Charcha. In this very special episode, we have a very passionate audio enthusiast. I shall call him a music composer, a music producer, a sound engineer, and I guess a passionate musician. And last but not the least, the CEO, the founder of India's online premium audio agency, Voices Bazaar. So to my viewers, to my subscribers, to my listeners, on this particular show we have Samarth Dabral as our guest. So Samarth, आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ओवर पर चर्चा में. Thank you so much, Harsh, for inviting me over. It's a pleasure to be with you, and you're doing a fantastic thing. Oh, thank you so much. इस इंडस्ट्री को आप जैसे लोगों की अब जरूरत है. So thanks for being the bridge between the artist Thank you. and agency and everybody. So समर्थ, सबसे पहले आपकी जो जर्नी है, योर म्यूजिकल जर्नी, और यू गेटिंग इनटू म्यूजिक प्रोडक्शन, योर पैशन अबाउट ऑडियो इंजीनियरिंग, तो ये सब चीजों की शुरुआत कैसी हुई, स्टार्टिंग फ्रॉम योर क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, आपकी स्टोरी हम सबसे पहले जानना चाहते हैं. सो इफ यू कैन जस्ट टेल अबाउट इट. So it started like very early. मैं 3-4 साल का था. I used to be on stage all the time. Oh. And I used to be hosting small events and Ganpati and all of that. तो मेरे को Okay. का कीड़ा पहले से था. And then I used to always sing a lot. I was never trained, unfortunately, but I used to sing a lot and all. तो मेरे को हमेशा से था कि यार मैं म्यूजिक में ही कुछ करना है. I want to be a singer or something. But like every other parent, my parents were also very concerned कि पता नहीं क्या फील्ड है. We come from a service class background, so nobody knew what to do. तो पहला फैक्ट, जैसे हर एक इंसान, हर एक बच्चे की लाइफ में आजकल, हमारे टाइम पे होता था, आजकल नहीं होता है फॉर्चुनेटली. आजकल तो अलग ही दौर हो गया है. आप इंजीनियरिंग कर लो या आप डॉक्टर बन जाओ. तो मैंने बोला डॉक्टर तो बन नहीं सकते, तो इंजीनियरिंग कर लेते हैं. सो देन आई लैंडेड अप इन इंजीनियरिंग कॉलेज. 4 years मैंने हर फेस्ट में परफॉर्म किया बॉम्बे के, और हर कॉलेज का हर फेस्ट ऑर्गेनाइज करता था मैं, ऑलमोस्ट सिंगिंग का और म्यूजिक रिलेटेड. तो कहीं ना वो एक म्यूजिक का पैशन था. धीरे धीरे इवॉल्व होके वो टेक्नोलॉजी मैंने पढ़ी एकेडमिकली, तो वहाँ थोड़ा कीड़ा था. फिर आई वॉज नेवर ट्रेन्ड, बाय द वे, आई वॉज नेवर अ Okay. मतलब बचपन से आपको ऐसे इंटरेस्ट था इसमें. And may I know the specialization of engineering, आपने किस चीज में किया था? I did my computer engineering from Mumbai University. Okay, computer science. Okay. So it is और मुंबई यूनिवर्सिटी का सबको पता है कि नंबर और केटी का संगम कितना रहता है. But fortunately I was, I used to pass my exams like really well. But then मेरे दिमाग में हमेशा यही था कि मुझे कभी भी I could not, probably work on a desk for the rest of my life. So I had a pact with my dad कि मैं engineering अच्छे से कर लूँगा, but after that I'll pursue whatever I want to. I want to pursue music. Per se I wanted to pursue singing that time. तो singing का passion मतलब अलग level पे था कि I was just focused only on singing. बाद में धीरे धीरे मैंने singing में थोड़ी training ली, but that was like pretty much during engineering. तो वो आधे time बहुत on and off हुई. And it might be interesting to hear that most of the instruments that I've learned, I learned them at the age of 25, 26 or something. So Okay. much later in life, I actually learned all of that. And, so uske baad I landed up doing advertising jingles and music scores and all of that. So that's how I got into, all this. That was the journey till the point where, I started this platform. मैं नो जैसे कितने साल तक ये मतलब कंटिन्यू हुआ, जैसे आपका म्यूजिक का और ये जो जिंगल्स जैसे आप क्रिएट करते थे? ये जर्नी अभी भी चल रही है. एक्चुअली हुआ ये था कि आई वांटेड टू बी सिंगर. सो सबको लगता है भाई मैं ही हूँ. मुझे भी लगता था कि सुनने को कि आज मैं ही आने वाला हूँ मार्केट में. ऐसा हुआ नहीं, ऐसा होता नहीं है. बट देन बिकॉज कोई डिफाइंड पाथ नहीं था. अनफॉर्चुनेटली इंस्पिरेशन वहीं से आती है कि मतलब मैंने जब इंजीनियरिंग करी, सबको पता था कि मास्टर्स करो, यूएस में चले जाओ या इन्फोसिस ज्वाइन, वहाँ सेटल हो जाओ. you have a path. What we want to do as artists in India, unfortunately,
there's no path. Yes, Plus, true. society wise भी we are not very inclined to, you know, arts be as a profession. You know, बहुत सारे लोग मिड लाइफ में ये एक्सपीरियंस करते हैं. मैंने अर्ली ऑन डिसाइड कर लिया था कि भाई मुझसे नहीं होगा ये, तो मे बी यू नो आई गेट अ हेड स्टार्ट वट एवर. एंड दैट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी. 5-7 साल, इट वॉज अ लॉट ऑफ यू नो डिफिकल्ट टाइम इनिशियली, बट यू नो इट वॉज एवर इंस्पायरिंग. उस चीज़ों ने बहुत कुछ सिखाया पूरी जर्नी में. प्लस सबसे ज़्यादा ना मुझे ये लगता था कि यार आई ऑलवेज विश्ड कि व्हेन आई वाज 21 आउट ऑफ कॉलेज आई कुड हैव समबडी हु कुड जस्ट टेल मी कि ये कर. अगर मैं अपने 21 साल वाले वर्जन को आज देखूं तो मैं उसको यही मेरे पास कोई आते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट्स आते हैं कॉलेज के, तो मैं उनको ये बोलता हूँ गो फॉर अ साउंड इंजीनियरिंग कोर्स, और एटलीस्ट गो इनटू दैट सर्कल. बेसिकली दैट्स द आइडिया. लाइक डोंट गो टू दीस कॉम्पिटिशंस और समथिंग, दे मे नॉट. अब तो बहुत सारे एवेन्यूज है यूट्यूब, बहुत सारे एवेन्यूज है. राइट. बट अगेन द बिजनेस एंड ऑफ इट ना, स्टिल इफ यू आर अ पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री समहाउ यू, आप साउंड इंजीनियरिंग कर लो, म्यूजिक प्रोग्रामिंग कर लो, वर्क विद सम बिग शॉट म्यूजिक कंपोजर्स इन द बिगिनिंग ऑफ योर करियर. Not when I started because I was pretty late initially. तो अगर वो आप 16, 17, 18 में करते हो या आप आपकी ग्रेजुएशन के बाद भी करते हो, it's the best time to start, I feel. If you really want to give it a shot. And half-hearted तो करके देखो किसी भी फील्ड में आप कुछ नहीं कर पाओगे. कुछ नहीं कर सकते. True. Have to give your 100%, but I also feel at the same time you have to be logical about your approach. You know, सिर्फ पैशन से नहीं, कभी थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करनी चाहिए. True. काम आता है. और मेरा पूरा मिशन यही रहा है अभी तक कि यू नो जो गाइडेंस और डायरेक्शन की मुझे उस समय ज़रूरत थी, क्या मैं वो गाइडेंस और डायरेक्शन और अपॉर्चुनिटीज़ और लोगों तक पहुंचा सकता हूँ जो मेरे ही 10 साल पुराने वर्जन में या 12 साल पुराने वर्जन में आज हैं. तो दैट्स हाउ दिस एक्चुअली द आइडिया ऑफ दिस एजेंसी स्टेम्ड इन माई हेड कि आई वॉन्टेड टू मेक अ प्लेटफॉर्म वेयर you know your geographical location or your connections don't really make a difference, your talent makes a difference. Also, you know, we curate people, we help them, you know, kabhi agar Yes, I'm coming on that. Like, may I, if you don't mind, may I know the year when exactly this idea came to you, Voices Bazaar, जैसे आपकी जो agency है? I think the name was not there. Name came like 4-5 years ago. Okay. से 1-2 साल पहले ना मुझे ये समझ में आया कि ऑडियो प्रोडक्शन में बड़ा कंफ्यूजन है बहुत. क्योंकि इंजीनियरिंग कर लिया आपने 4 साल, तो आपको समझ आता है कि प्रोसेसेस होने चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पेपर वर्क सॉर्टेड होना चाहिए विद द आर्टिस्ट, विद द क्लाइंट्स, राइट ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए. तो ये सब चीज़ों को मुझे लगा कि इट्स वेरी अनऑर्गेनाइज्ड. प्लस इट्स लाइक अ सिस्टम वेयर यू हैव टू गो एंड फिट इन. रादर आई वांटेड टू मेक अ सिस्टम वेयर आई आस्क द आर्टिस्ट, ओके यू नो हाउ मच डू यू वांट टू चार्ज फॉर समथिंग. So when this conversation shifts into that direction, it becomes a very, you know, conducive environment. तो ये सारी चीजें जो मुझे करनी थी, ये मेरे दिमाग में काफी टाइम पहले थी, और कहीं ना कहीं मुझे पता है टेक्नोलॉजी इज द लेवरेज. ठीक है, you want to really absolutely difference, we need to get a, you know, good platform. You know, we've made this entire platform, पूरा उसका पीछे का बैकग्राउंड, सारे प्रोसेसेस हमने डिफाइन किया, and it's ever evolving, right in the evolving stage right now. But then ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में 4-5 साल पहले थी, which would be like 2019 or 18 or something. And then one fine morning I had this idea like Voices Bazaar. Yes. Fired by 2 very popular website, one from India and one from the world. So मैं गया, मैंने फटाफट domain name search किया, it was available, it was 8:30 in the morning, I booked it for lifetime now. So nice. I had the name but I didn't have a platform for like 4-5 years. उसके बाद I was searching for the right team to actually start it with. Okay. That is how it began. Actually. I was coming on that. ये domain name book करना ना, ये बहुत ही राहत वाली बात होती है कि यार ये अवेलेबल है, चलो ये बुक कर लेते हैं, हमारे नाम हो गया. अब तो ये .com नहीं मिलता, .com मिल गया हमें, तो .com मिल गया. .com of course that's like the global, क्योंकि देखो .in, .co, .in सब मिल जाएगा, लेकिन .com मिल गया ना, मतलब इस पे आपका हो गया काम. अब जो हमें तब मेरे को उसकी बहुत ज्यादा डीप नॉलेज नहीं थी. But I knew that .com would really be a better. Yes, of course. I actually started with searching the name first, because कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ क्लियर करनी थी कि क्योंकि Indian voices और global voices platforms पे Indian voices still are not represented in the right light अभी भी. Yes. कहीं ना कहीं we are from India to the globe and the best in the country. You know, for the world, basically. That's the vision of what I wanted to do. Nice. Like one thing I would like to really admire in your particular platform, जैसे होता है कि
जैसे आपने नाम लिए voices.com, voice123 और ऐसे कई सारी साइट्स, जैसे फाइवर हो गया। अब वहाँ पे क्या होता है, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द वॉइस स्पेस, वॉइसिंग, वॉइस एक्टिंग, वहां पे सिर्फ ये होता है, आपने अकाउंट बनाया, आपने सैंपल डाल दिए और आप वहां की कोई मेंबरशिप ले लेते हो। वहां पे कोई क्वालिटी चेक नहीं होता। बट इन योर पर्टिकुलर केस आई रियली लाइक कि वहां पे आप, यहाँ पे क्वालिटी चेक होता है, आप पहले सुनते हो, बिकॉज ऑफ कोर्स ये चीज आप थोड़ा अगर उसको और डिफाइन कर सकते हो, जिस तरह से एक तरह से क्वालिटी कंटेंट आपके पास आ रहा है, हम्म। एंड इवन फॉर द क्लाइंट्स यू हैव, what I can say the best quality of talents you have. So ये इसमें आप थोड़ा अगर और लाइट डाल सकते हैं। हाँ, सो बेसिकली इस मॉडल को मैंने बीटा टेस्ट किया है पिछले 4-5 साल। आई हैव प्रोड्यूस्ड लाइक अ लॉट ऑफ रेडियो कैंपेन्स, लॉट ऑफ म्यूजिक फॉर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स, वॉइस ओवर्स मैंने बहुत करवाए कॉर्पोरेट टीवीज के। वी आल्सो डन अ लॉट ऑफ गेमिंग वर्क। सो व्हाट आई रियलाइज्ड विद एवरी प्रोजेक्ट ना, कुछ चीज़ें निटी-ग्रिटीज मुझे समझ में आई, और हमारी इंडियन इंडस्ट्री और इंडियंस कैसे काम करते हैं वो चीज़ तो मुझे पता है, वो चीज़ मैंने रियलाइज करी, और उस चीज़ को ना कहीं फॉर्मुलेट होते गए वो दिमाग में। तो व्हेन वी आर मेकिंग द वेबसाइट वी रियलाइज्ड प्रैक्टिकली हम लोग जैसे काम करते हैं, इट्स अ B2B प्लेटफॉर्म, सो वी आर वर्किंग विद एजेंसीज, योर गेमिंग कंपनीज, e-learning companies, all of that. So most of my clients are business clients. They don't have the time to go to a platform and find the artist and lock the artist and share the script and do all of that. And it's a very tedious job. Yes. इंडियंस का एनंसिएशन और फॉरेन कंट्रीज में जो एनंसिएशन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। फॉरेन से आई मीन द वेस्ट, दे हैव लाइक अ मोनोटोनस वे ऑफ टॉकिंग, दे डोंट हैव दिस काइंड ऑफ मॉड्यूलेशन। प्लस इंडिया में ले और इनटू जितनी भी हमारी 27 से 30 रजिस्टर्ड लैंग्वेजेस है, उसके अलावा भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी है। तो उन सारी लैंग्वेजेस से आप मल्टीप्लाई कर दो तो कंफ्यूजन इज ह्यूज। सेकेंडली, व्हेन वी गो आउट ऑफ द मेन मेजर सिटीज इन इंडिया, बहुत सारे लोगों को इक्विपमेंट नो हाउस नहीं पता, ये नहीं पता, तो हमने क्या किया, हमने इस चीज को ऑपरेशनली क्रैक किया कि हम हमारा सारा जो ऑनलाइन प्रोसेसेस आर ओनली द प्रोसेस व्हिच डू नॉट रियली नीड द आर्टिस्ट टू बी इन्वॉल्व इन दैट। क्योंकि हम हमेशा ऐसा होता था कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है, आप 3 सैंपल भेज दो, 3 सैंपल भेज दो, 3 सैंपल इतना ज्यादा स्टिक हो गया, तो वी एक्चुअली मेड फिल्टर्स व्हिच आर वेरी स्पेसिफिक टू इंडिया। जैसे अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म में जाओगे तो देयर आर 3 फिल्टर्स ऑन इंडस्ट्री। once you click that you have male female, once you click that, if you click advertising there are tones which are not present globally also। किसी भी प्लेटफॉर्म में आपको टोन से नहीं मिलेगा, हमने ब्रांड से भी हैशटैग किया हुआ है। सो फ्यूचर में ब्रांड से भी सर्च कर पाओगे, आपको BMW किसने किया है वही आर्टिस्ट सुनने हैं, तो आई डोंट नो हाउ दैट वर्क्स, बट हमेशा 2 या 3 ऑप्शन ही आते हैं। एंड हमेशा क्लाइंट्स आर वेरी दे वेरी इजीली मेक अ चॉइस व्हेन दे हैव 3 और 2 ऑप्शंस। एक में तो चॉइस है नहीं। दिस वाज वेरी फनी, मैंने एक क्लाइंट को एक वॉइस भेज दी, बोला चूज करो, बोला चूज क्या करूं मैं, वन हाउ विल आई चूज, एंड आई वाज लाइक डूड दैट्स सच अ स्टूपिड क्वेश्चन। सो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, 2 से 3 आर्टिस्ट दिखने चाहिए, टोन से आप ढूंढ सकते हो, आपको अग्रेसिव टोन चाहिए, ये चाहिए। और मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि एडवर्टाइजिंग के जो जितने टॉप टैलेंट्स मुंबई में हैं, आई हैव वर्कड विद ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम before even this platform started. So I personally reached out to most of them because वो ज़्यादातर उनमें से LinkedIn पे नहीं है, सोशल मीडिया पे भी वो हार्डली अवेलेबल होते हैं, एंड वो किसी वेबसाइट पे भी नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत एक्सक्लूसिव सेट ऑफ ये आर्टिस्ट है which are very which are accessible through the network, and for them also मतलब out of the Mumbai industry अगर किसी को ढूंढना, it is a task, but made that task very simple. And also we've done the entire paperwork with them, so कि कैसे कैसे क्या होगा, उनके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस, और ये सारी चीज़ों पे भी हम आएंगे थोड़ी देर में। बट हाउ डज दैट वर्क, बिकॉज क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई लीगल स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई देयर इज स्ट्रक्चर्ड रेट कार्ड के स्ट्रक्चर नहीं है, एडिट्स के नहीं है, कुछ नहीं पता लोगों को। सो एवरीबडी हैज देयर ओन वे ऑफ डीलिंग विद इट। तो हम उसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज करने का हमने ट्राई किया है प्लेटफॉर्म पे। तो ये सारी चीज़ें जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो ऑपरेशनली ultimately curation is at the core of it कि we only hire the best, हम ऑन बोर्ड भी करते हैं। एंड एक फनी चीज़ थी कि मेरे को पता है कि मतलब ये प्रिंसिपल हमारा प्लेटफॉर्म का पहले से रहा है कि वी विल नेवर चार्ज एन आर्टिस्ट अ फी टू रजिस्टर ऑन द प्लेटफॉर्म। सो रजिस्टरिंग ऑन माई प्लेटफॉर्म इज एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। द ओनली फी दैट यू हैव टू पे इज यू नीड टू बी लाइक सुप्रीमली टैलेंटेड, और यू नीड कमिंग ऑन दैट, दोनों से एक होना चाहिए। So all those who are listening to this show or watching this show, maybe
on big say YouTube या YouTube Music पे अगर देख रहे हैं, इसको सुन रहे हैं YouTube Music पे या Spotify, any other platform. So your suggestion या message to them या advice to them कि अगर उनको आप चाहते हो कि आप उनको consider करो. So in terms of the talent, in terms of the recording technique, what would you like to say? See, honestly, एक जो क्योंकि मैंने almost 3000 लोगों को सुना है personally, I've listened to every sample that has come, and अभी भी मैं हर महीने टाइम निकालता हूँ एक बार. My main problem is कि बहुत लोगों को ये समझ नहीं आ पा रहा है, उनकी शायद आवाज़ भी अच्छी है but they are not able to represent themselves properly, because I just need like one sample or maybe two to just make sure, and I just need a 30-second long sample or 15 seconds also work in my case. 15 सेकंड में I understand कि क्या स्किल है. Secondly, ये एक मिथ और लोगों के दिमाग में होती है कि मेरी आवाज बहुत भारी है तो बहुत अच्छी है और बहुत पतली है तो बहुत बेकार है. ऐसा कुछ भी नहीं होता. ऐसा नहीं होता. वॉइस इज like an important part कि वो different हो, अच्छी हो, textured हो, सब हो, but the skill part is where you can make a difference, Yes, not just talent. Trust me, the guys that I work with, the best in the game, they have the best voice, but what is even better is their skill, their approach of doing it. So कहीं ना कहीं जब आप sample भेज रहे हो ना, take a little pain in doing that. I'm not saying आप जाके सबसे बढ़िया प्रोफेशनल स्टूडियो में रिकॉर्ड करो. That is okay. If you want to do it, you should do it. In fact, not just for us but for everybody. The core reason for that is you have to represent yourself in the right light. ठीक है, मेरे पास मोबाइल डब के सैंपल आते हैं. Honestly, we can't listen to that more than 10 seconds because I can't share that with my client to begin with. And operationally post COVID ऐसा हो गया है कि basic setup, basic audio editing is मतलब आर्टिस्ट का एक ये हो गया है, क्या बोलते हैं, कहीं ना we have been bound to do that. And trust me, that's the biggest blessing in disguise, because now geographical distance doesn't matter. If you are talented, I can, we are working with people from Kolkata, from down south, Tamil Nadu, Kerala में हमारे पास आर्टिस्ट है, कनाडा के बहुत रेगुलर होते हैं. And all these artists have their home setups and they are fantastic with their work because we need like a good raw signal. So कहीं ना कहीं आर्टिस्ट को ये दो फैक्टर्स पे जरूर काम करना चाहिए. अपने सैम्पल्स आप अच्छे भेजिए जो आपको राइट लाइट में रिप्रेजेंट करें. ट्राई करिए कि अच्छा, अगर आपके पास एक बेसिक माइक्रोफोन है उसका भी हम आपको सजेशन दे देंगे कि व्हाट यू शुड गो फॉर. तो वो सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करिए और आप भेजिए. और ऑनेस्टली मतलब हमारे प्लेटफॉर्म पे तो अभी मतलब 98% attrition rate है. Only 2% people get through. But trust me, you send us again after 3 months. Take your time, because the moment you're ready for us now, you're ready for the world also. So it will benefit you. So people need... One thing, just sorry to interrupt. I'm just asking this, if anyone is rejected or something like that, you're not considering them. So ठीक है, मतलब उनके पास कोई रिवर्ट नहीं आता. कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपके पास मेल पे आया कुछ ऐसे हुआ, या आपने कॉल पे आपने उनको फीडबैक दे दिया that why they are not selected for this particular thing. होता है. मैं एक्चुअली ना, देखो, लिख के भेजना ना मेरे को थोड़ा सा, आई एम एन आर्टिस्ट, आई नो, अच्छा नहीं लगता है. मतलब ठीक है, लॉन्गर रन में वो अच्छा है, बट लिख के भेजना ऑनेस्टली इट विल नॉट मेक मी फील कंफर्टेबल ऑल्सो डूइंग दैट, because I am nowhere to reject anybody. First of all, it's just like I am selecting for my clients, for all the businesses that I am providing that service. So I need to make sure कि pronunciation ये सब कुछ sorted है. But कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो मुझे reach out करे हैं बीच में, and trust me, almost everybody has taken the feedback in the right spirit. Everybody. Nice. I've not come across one person जो मुझे समझ नहीं पाया. मतलब मेरा इंटेंशन वो समझ गए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. एंड ट्रस्ट मी, आई हैव सीन पीपल हु स्टार्टेड एट अ लेवल वेयर ऑनेस्टली उनको कोई नहीं लेता, से आज उस लेवल पे हैं कि वो हर एक एवरी अदर प्रोडक्शन हाउस इज वर्किंग विद देम. सो दैट परसिस्टेंस हैज टू बी देयर. वो पैशन चाहिए अल्टीमेटली. यू शुड नॉट बी आइंग ऑन द, क्योंकि क्या होता है सोशल मीडिया में, वी गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सो मेनी थिंग्स. So many times we presume कि जिंदगी इतनी आसान है और सब बहुत lavish है और ये है. ऐसा कुछ नहीं होता. It's a lot of hard work. It is skill, and again, as any other creative field, singing में जैसे मेरे साथ हुआ, ये आपको results नहीं मिलते no matter how much you work hard. But then you need to understand why. If you work on the why ना, चीजें बनेंगी. मेरा इंटेंशन यही है कि कोई भी हमारे से अगर रीच आउट भी करता है हमें कॉल पे कैसे भी, I give them all the time and I give them a genuine feedback. जहाँ स्कोप है वहाँ मैं देता ही हूँ,
और जहाँ स्कोप नहीं है वहां भी मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. बट आई थिंक पीपल शुड टेक इट इन द राइट स्पिरिट. बिकॉज और एक चीज हमने क्यों मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म पे किसी भी तरह का हम नहीं रखने वाले हैं ना, हम किसी तरह की स्पॉन्सरशिप रखते हैं, इज बिकॉज वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट इन दैट डिसीजन. Like just because I'm charging you a fee, I won't show you on the first result. It is never going to happen. Secondly, since the algorithm has been designed by a genius friend of mine, so whenever you put any filters on the platform, you'll automatically get new artists. तो कोई भी ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा आपको टॉप पे हमेशा दिखाई देगा. If you just refresh, the sequence changes. ये वन मोर थिंग, जैसे उसमें लैंग्वेज के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, आपके आपके उसमें ब्रांड के हिसाब से भी है, तो वो एक बहुत ही इम्प्लीमेंट नहीं किया मैंने, टोन के हिसाब से किया. टोन के हिसाब से. ओके ओके, यस यस यस, वेरी मतलब ना क्या होता है, बहुत एक और ऑब्जर्वेशन मेरी ये थी कि हमारी वेबसाइट इज मोर सैम्पल ड्रिवन. आप सैम्पल ढूंढते हो, क्योंकि मेरे पास जब भी क्लाइंट्स आए इन द लास्ट 4-5 years दैट आई हैव बीन डूइंग इट विदाउट द प्लेटफॉर्म, वाज कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे थोड़ी वैसी आवाज चाहिए. अब हर एक इंसान को ना वो शब्द नहीं पता होता, क्योंकि हमें स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता. और मतलब अभी द फनी थिंग इज, हर चीज को लोग क्रेसेंडो बोलते हैं. क्रेसेंडो इज अ वेरी डिफरेंट वर्ड इन अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड. तो कहीं ना कहीं उन टर्म्स को ना सबके लिए सेंस बनाए हमने, उनको ब्रेक डाउन किया टोन्स में, कि एटीट्यूड वाला टोन, सोफिस्टिकेटेड टोन, सेलिब्रिटी लाइक टोन, वार्म एंड फ्रेंडली, जो कि मतलब नॉर्मली आप एडवर्टाइजिंग में सुनते हो, नॉर्मली होता है. बेस्ट बात पता है क्या, जो अगर कोई आर्टिस्ट अभी मेरे को सुन रहे हैं, आप जाके उन प्लेटफॉर्म पे जाके आप प्लैटिनम आर्टिस्ट को सुनो और गोल्ड आर्टिस्ट को सुनो, उनकी टोन्स को सुनो. यू विल गेट टू लर्न सो मच, बिकॉज दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. मतलब जो सबसे अच्छे आर्टिस्ट. यस यस, आपके उसमें कैटेगरी बनी हुई है प्लैटिनम और गोल्ड. सो प्लैटिनम और गोल्ड ना, हमने honestly we are nobody to rate artists, but for the for the greater good and for the ease of access for our for our clients, what we've actually done is we've categorized artists as per their experience, not as per their skill. Okay, I'm nobody to judge their skill, to be honest, but experience, the kind of brands they've worked with, the kind of proficiency they have. Because शायद मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं, डेफिनेटली मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट मैं म्यूजिक बहुत अच्छे से समझता हूँ. मुझे सुर ताल समझ आते हैं, मुझे बारीकियां समझ आती हैं, जो बचपन से हमने प्रैक्टिस की हरकतें, मुर्कियां, प्रोनाउंसिएशन, अंग की मात्रा, आ की मात्रा. तो व्हेन यू गो टू अ प्लैटिनम आर्टिस्ट वर्सेस द गोल्ड आर्टिस्ट, वो एक फाइन डिफरेंस आपको मिलेगा, बट इट इज इमटेरियल टू 80% ऑफ द पीपल दैट कम टू द प्लेटफॉर्म. सो कहीं ना कहीं हमने कैटेगराइजेशन किया है इन द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दैट पीपल हैव, और द काइंड ऑफ ब्रांड्स दैट दे वर्क विद, प्रोफिशिएंसी के हिसाब से हुआ है वो. तो ये 2 कैटेगरीज हैं. एक तीसरी कैटेगरी है, सिल्वर कैटेगरी भी है हमारे पास, विच इंक्लूड्स पैन इंडिया आर्टिस्ट, रीजनल आर्टिस्ट दैट वी हैव फ्रॉम रीजन्स, डिफरेंट रीजन्स. नाउ दैट्स वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, कि हमने हमारे जितने रीजनल आर्टिस्ट हैं, दे आर फ्रॉम देयर ओन स्टेट्स. लाइक दे आर नॉट लाइक I'm from Uttarakhand, but I've been living all over the country. So my Gadwali is not there at all. और मैं बोलने भी चाहूँगा तो मेरी हिंदी भी महाराष्ट्रियन है, because I'm living in Maharashtra for 20 years. I'm almost now. So कहीं ना कहीं हम जब जिस environment में आप रहते हो, जिस भाषा, I can completely correlate that, because like my particular case, see, as of now I'm in Gujarat, but वो मैं 3 साल पहले शिफ्ट हुआ हूँ. तो हम जैसे ना दिल्ली में पले बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं वो मेरी गुजराती में ना झलक जाता. अब तो बेटर हो गई क्योंकि अब 3 साल हो गए मुझे आए हुए, बट कहीं ना कहीं वो झलक जाती है कि वो 30 सेकंड के बाद पता चल जाता है यार ये कोई बंदा नॉर्थ का ही है. तो I thought you were from Uttarakhand only, because हाँ, वो सरनेम से लगता है. नहीं हम वैसे ओरिजिनली वी आर फ्रॉम गुजरात. हाँ, because तुम्हारी एक्सेंट भी नहीं है, you don't have any flavor. So that's exactly the thing, कि एक और फनी चीज जो मैंने मतलब मैं इम्प्लीमेंट करूंगा, it might sound crazy to a lot of people, कि why don't we have, जैसे इंग्लिश आप देखते हो, आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे इंग्लिश होती है, यूके एक्सेंट, यूएस एक्सेंट, ये एक्सेंट, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट. why don't we actually have English in different accents? Tamil people speak in a little different way. Yes, true. Malayali people speak in a different way. So why can't we actually have English in Malayalam accent? That's something that I'm planning to get. I don't know how far people are going to benefit. No, adding on to that, if I can share something, the way this podcast market is rising, the audio content market is rising,
तो अगर जैसे और ऑडियो ड्रामास और इस तरह की कहानियों में जब एक बार बढ़ोतरी होगी, तो वहां पे ऐसा होता है ना कि जो एक दो लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश में, तो वहां पे ये इस तरह का, आई डोंट नो, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, जो आप कह रहे हो तमिलियन इंग्लिश हो गया, मलयालम इंग्लिश हो गया, या फिर इनफैक्ट हियर गुजराती स्टाइल इंग्लिश या पंजाबी स्टाइल इंग्लिश, वो वहां पे कोरिलेट हो पाएगा। जब वो इंग्लिश में बात करते तो कहीं ना कहीं उनके एक्सेंट आती है, रीजनल टच आता है। एक फनी चीज बता दो तो, एक हमारे डॉक्टर साहब है, हमारे पास एक कर्नल साहब भी हैं, एक डॉक्टर साहब भी हैं। तो एक डॉक्टर साहब है, इज अ पैशनेट महाराष्ट्रन एक्सेंट एंड ही केम थ्रू लिंक्डइन ओनली। तो उनका, मैंने उनकी आवाज सुनी एंड आई एम लिविंग महाराष्ट्र फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो आई मीन, और मुझे समझ आती है भाषा, इतनी अच्छी मराठी, इतनी गोड़ मराठी बोलते हैं, गोड़ मराठी मैंने सुनी नहीं कभी यार। आई वाज लाइक माइंड ब्लोन एंड व्हाट अ, सो आई कॉल्ड हिम अप एंड उन्होंने अपने हिंदी और इंग्लिश के सैंपल भेजे। तो अब आई हैड टू बी ऑनेस्ट टू हिम कि इट हैड अ लिटिल महाराष्ट्रियन फ्लेवर। रीजनल टच, या वो है ही, वो होगा ही। हो गया होगा। आप जितना नेटिव उसमें रहते हो आपका होता है। कट टू 3 days later, I got a call from our AR/VR company called Parallax that we work with. Ki we are doing a video for a farmer who's from Satara, from Maharashtra, and he needs to speak English like a Maharashtrian. So just imagine, मतलब 2 हफ्ते, 3-4 दिन पहले मैंने ये सैंपल सुना एंड आई वाज लाइक, डूड, आई हैव द बैकग्राउंड सैंपल दैट यू नीड, एंड दैट गाय गॉट दैट जॉब एंड इट वाज with us. So Nice. he did English, he did because वो जो कैरेक्टर, कमर्शियल, यस यस हाँ, यस। वो जो कैरेक्टर था उस फार्मर था जो उस कमर्शियल में, ही वाज अ महाराष्ट्र का फार्मर, सो ही हैड टू स्पीक इन महाराष्ट्रन, इन मराठी, एंड ही आल्सो हैड टू स्पीक इन इंग्लिश. सो नाउ यू कैन मेक हिम टॉक लाइक अ सिटी गोअर, राइट? सो इतना बढ़िया वो कैरेक्टर में फिट हुआ एंड मैं उनको ई लर्निंग के लिए पहले कंसिडर कर रहा था, फिर मैंने उनको मराठी के लिए कंसिडर किया. Then all of a sudden one day, I had some character opportunity, character voicing का कुछ था, so I sent it. He blew it out of the park. I was like, dude, क्या character पकड़ा है. So ऐसे talents जो है ना, वो हम discover कर पा रहे हैं. मेरे को सबसे ज्यादा खुशी उस चीज की हो रही है अब, कि मतलब हम जहाँ expect भी नहीं करते. Secondly, it adds fresh talent to the pool. Yes. From the client's perspective, like just imagine कि आप साउथ की कोई डब्ड मूवी देख रहे हो, उसके बाद आप नेक्स्ट मूवी देख रहे हो, उसके बाद नेक्स्ट मूवी देख रहे हो, उसके बाद नेक्स्ट, सबके ऑलमोस्ट सेंटर कैरेक्टर्स आर प्लेड बाय द सेम गाय फ्रॉम सेम गोस फॉर अदर थिंग्स. ऑल ऑफ अ सडन ना, इट आई एम नॉट जजिंग और समथिंग, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज व्हाई नॉट वी ऐड मोर पीपल. Yes. And we actually do a Netflix का तमिल का dub in Hyderabad, in Chennai. Why can't we do a Telugu का dub in Hyderabad? We go there and we do it with the artist. So bringing fresh talent, क्योंकि ये दोनों लोगों को बेनिफिट करने वाला है. और ये फ्रॉम माई स्टोरी ऑल्सो कि टैलेंट को ना कभी भी ज्योग्राफिक चैलेंजेस नहीं होने चाहिए. ये मेरा कमिटमेंट ही ये है पूरे प्लेटफॉर्म को बनाने का, कि हमें ऐसा टैलेंट ढूंढना. मैं चाहता हूँ, हमारे पास नागालैंड से लोग हैं, मतलब जस्ट इमेजिन, वी हैव पीपल फ्रॉम नागालैंड, वी हैव पीपल फ्रॉम मणिपुर, वी आर ब्लेस्ड विद टैलेंट. मतलब इंडिया में इतनी अच्छी आवाजें हैं, मतलब people have no clue अभी तक. फनी चीज, एक बार मसूरी में था and I've been so obsessed with it and I just got married. तो हम मसूरी में ब्रेकफास्ट कर रहे थे फैमिली के साथ. So there was this सर्वर जो आए खाना सर्व करने के लिए, and his voice was resonating like crazy. इतनी भारी आवाज, इतनी प्यारी आवाज. He was serving people food. मतलब उनके मीन्स वो है लाइफ के. उस समय मेरे को ये लगने लगा था, यार ये बंदा अगर किसी स्टूडियो में हम इसको जाके आवाज दे तो क्या हो जाएगा, कि आवाज ही इतनी, और उनको खुद नहीं पता. ये एक चीज हो जाती है कि अब जैसे अगर आपके पास एक अच्छी आवाज है, अब उससे मतलब आप वेरिएशंस ला सकते हो, बट काफी लोगों को पता ही नहीं होता उसका करना क्या है. हाँ, तो स्किल वाला पार्ट तो देखो, जिसके पास रॉ मटेरियल है उसको आप स्किल सिखा सकते हो, और अगर वो पैशनेट और हार्डवर्किंग है तो वो कर लेगा. ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जाके एक एक्टिंग का कोर्स लो या ये सब चीजें करो. आप वॉइस एक्टिंग का, इन सब का कोर्स लो. आप एक्टिंग की क्लास लो ना, आप स्पीच की क्लास लो, आप लैंग्वेज को इम्प्रूव करो, आप सिंगिंग की क्लास ले लो, क्योंकि आपको प्रोजेक्शन और आपकी ब्रेथ को सीखना है ना. बाकी तो आप स्टूडियो रूम में घुसने के बाद और रिजेक्शंस के बाद ही सीखोगे, लाइफ सीख लोगे तो फैक्ट है. तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें ना, मतलब मेरा थॉट प्रोसेस ऐसे ही चलता है कि व्हाई कांट वी. So it's a good employment opportunity for a lot of people pan India. Yes. One more thing, जैसे
इन टर्म्स ऑफ आपने जैसे भी स्किल टैलेंट की बात की और जो ऑफ कोर्स डाइवर्सिटी है, जब घर पे रिकॉर्ड करने की बात आती है तो दो चीजें, फर्स्ट ऑफ ऑल द माइक्रोफोन एंड सेकंड द सॉफ्टवेयर, उसके बारे में आप क्या मतलब व्हाट वुड लाइक टू ऐड ऑन? मेरे को मतलब I since I also started as a music programmer, producer and all, so initially मेरे पास मैंने बड़ी मुश्किल से एक MacBook अरेंज किया था and I had a very basic sound card and an SM58 which I still have. You know, I have done gigs with it, I have thrown it around, बहुत कुछ हुआ है इसके साथ, बेचारे के साथ बहुत गिरा ही है, but it still sounds the same exactly. Yes. 12 to 13 years. What I'm trying to tell you is एक चीज़ ना लोगों को थोड़ी समझनी पड़ेगी कि टेक्नोलॉजी जो है ना अब वो बहुत अच्छी हो गई है, ठीक है, थिंग्स आर वेरी इनएक्सपेंसिव, बट माई थिंग इज दैट आई अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी साइड ऑफ इट ऑल्सो इक्वली वेल. तो माई सजेशन टू एवरीबडी, यू नो, इट्स अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट नाउ, go for a dynamic mic if you're recording at home. That's point number 1. ठीक है, आपको कितना भी लगेगा कंडेंसर माइक ले लो, ये ले लो, you won't be able to handle the noise around your room. Yes, sensitivity ज़्यादा है. नहीं है. आप या तो आप ट्रीटमेंट करा लो दुनिया भर का, वो आपको कराने की जरूरत नहीं है प्रैक्टिकली. You just need a good dynamic mic and it solves like 90% of your problems. Now again the second thing is कि if you get, so my recommendation is also on my platform and I'm planning to do such videos to help the community basically. So Nice. मेरा जो सबसे फेवरेट माइक्रोफोन है दुनिया में वो है SM58. Shure SM58 आप गूगल कर सकते हो जाके, वो माइक आप आयरन मेडन के कॉन्सर्ट में देख सकते हो, वो माइक आप यू नो समर ऑफ 69 में भी शायद वो माइक यूज करते हैं. It's a legendary microphone. It's been used for ages. I'm not talking about SM7B जो podcasters बहुत सुंदर, you know, it's a 50,000 40,000. You really don't need that. आपकी आवाज अच्छी होनी चाहिए. माइक के अच्छे होने से आपकी आवाज अच्छी नहीं होने वाली, ठीक है. Point number 1 is going for a dynamic mic. So I have 2 recommendations. One is Shure SM58, but for that you need a sound card. Because dynamic mics को power XLR mic है वो. हाँ. I'll tell you the difference. So there are 2 type of microphones broadly. बहुत और भी टाइप्स होते हैं, रिबन होता है, बट हम अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 माइक्स कंसिडर करते हैं. एक होता है डायनामिक, एक होता है कंडेंसर्स. डायनामिक हैव अ रेजिस्टर, बेसिकली एक रेजिस्टिव सर्किट होता है. कंडेंसर्स हैव अ कैपेसिटिव सर्किट. तो जिसने भी बेसिक फिजिक्स 12th का पढ़ा उसको पता होगा कि रेजिस्टर्स को हम वायर से डायरेक्टली कनेक्ट करके वो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर पाते हैं. कैपेसिटर्स के अंदर एक चार्ज चाहिए होता है, तो दे नीड लाइक एन एक्सटर्नल पावर, ठीक है. Capacitors are very sensitive. They have great mics. ठीक है, I have nothing against them, but you need a soundproof room for that. You need a studio room. आप थोड़ा बहुत छोटा कंटेंट मैनेज कर लोगे, बट कसम से कोई अगर जैसे हम इंडिया में हैं तो कोई स्ट्रीट से कोई गाड़ी चली गई हॉर्न बजाते हुए, उसको निकालने में आफत आ जाती है. You can't. But with a dynamic mic, it's less sensitive, so it's less prone to all this stuff. नॉइज का, रिवर्बरेशन का बहुत फर्क पड़ता है. बहुत फर्क पड़ता है. SM58 के लिए यू नीड अ बेसिक साउंड कार्ड, सो यू कैन गेट लाइक अ स्कारलेट का, श्योर स्कारलेट का आप ले सकते हो, कोई भी बेसिक साउंड कार्ड ले सकते हो. मेरा कहना है ऑडियो अच्छी ब्रांड्स के लिए जाओ, गो फॉर श्योर, गो फॉर AKG, गो फॉर यू नो लेट्स से लेविट इज अ वेरी गुड माइक. यू नो आप ये रेंज में कोई भी अच्छा माइक, रोड NT1 इज अ कंडेंसर, सो यूज इट इन अ ये. Never, please, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, don't go for these knockoffs Chinese brands. वो podcasting और सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है, they are very inexpensive, easy to use, but these companies have been doing it for 50 years. They know what they're doing. Yes, they have the technology, patents on that, and they are tested over, you know, ages now. So इन mics के लिए जाओ, इन अच्छी brands को आप consider करो, because क्या होता है जब हम बोलते हैं there's a frequency range of say, मतलब ऑडिबल रेंज को 20 to 20,000 बोलते हैं, बट इट स्टार्ट्स एट अराउंड यू नो 100 हर्ट्ज 150 के ऊपर और 15-16,000 में खत्म हो जाती है. इसका जो माइक का बेसिक काम है उसको रियलिस्टिकली कैप्चर करना. कहीं ना कहीं जब आप किसी ऐसी ब्रांड ले जाते हो जो नॉक ऑफ है या चाइनीज ब्रांड है, मतलब आई डोंट नो वेदर आई शुड टेक द नेम्स, बट ऐसी ब्रांड्स ले मत जाओ, बिकॉज वो पॉडकास्टिंग के लिए अच्छे माइक्स हैं. वॉइस ओवर में क्या होता है, वो आपकी मिड रेंज में ही रिस्पॉन्स उसका बहुत था, तो आपके मिड्स नहीं आएंगे. मिड्स इज लाइक योर बॉडी, टॉप हाइज आर लाइक योर टॉप, वो आपको कंडेंसर में बहुत अच्छा दिख जाता है, बट आपकी बॉडी विजिबल नहीं होगी, तो आपकी आवाज ही कभी ढंग से नहीं होगी. फिर आपको लगा मेरी आवाज में प्रॉब्लम है, आपकी आवाज में नहीं प्रॉब्लम है, आपके माइक में प्रॉब्लम. अगर आपको, बिकॉज इफ यू बाय अ साउंड कार्ड एंड एन SM58 एंड ऑल, थोड़ा वो आपको अभी अब एक्सपेंसिव हो गया है,
there's one fantastic mic that I've figured out, जिसका पता नहीं अब शायद Amazon पे प्राइस बढ़ने लगा है क्योंकि मैंने बहुत लोगों को रिकमेंड करा है वो, ठीक है, and there's no affiliation or anything from the brand. I came across that mic with one of my very favorite artists, and उन्होंने कुछ e-learning का content किया था 1-1.5 घंटे का, and there was no noise. I was like, and he lives in Bombay, so I know कि वो soundproofing possible ही नहीं है. I was like, what mic are you using? So he told me there is this mic called Audio Technica, a USB 2100. 2100, yes. Is a Audio fantastic Technica microphone. And trust me, we've done recordings for BMW with that mic. You know the kind of quality they would, Of course. He's done, like, he's been using it since COVID, and मतलब he loves that mic, and it's very inexpensive. I think that entire mic costs somewhere in the range of say 7,000 to 8,000. 8,000 इनफैक्ट उसकी ना कंपैरिजन एक माइक्रोफोन के साथ होती है, वो तो आपने तो उसका जिक्र किया ऑडियो टेक्निका 2100. देयर इज वन मोर माइक सैमसंग Q2U, तो ये दोनों में हमेशा क्या कंपैरिजन होती है, बट जैसा आपने कहा 2100 इज परफेक्ट. I would also always go for a Sennheiser. I would also go for an Audio Technica. समझ लो, ये ऑडियो इंडस्ट्री की बहुत बड़ी ब्रांड्स हैं, ये 4-4 लाख के माइक भी बनाते हैं. पूरे टेक्नोलॉजी इनसाइड आउट, लेविट है. तो बेसिकली क्या है, आपको ऐसा माइक चाहिए जो आपको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए, आप इजीली उसको यूज कर पाओ. और ऑडियो टेक्निका में फायदा ये है कि वो यूएसबी माइक है, आप कहीं बाहर गए हो फैमिली के साथ, आप फोन में कनेक्ट करके उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, एंड इट इज फैंटास्टिक. मतलब द क्वालिटी, बिकॉज आई हैव मिक्स्ड इट आल्सो ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजन, it captures your sound like brilliant. But SM58 still is my first love because it is, वो महीन better है, but कहीं ना कहीं ease of use, and secondly for a person who's just starting out, investing that amount of money on a sound card and a mic will not make sense. So आप वो 5-7 हज़ार 4,000 का Chinese knockoff लेने से अच्छा go for a good Audio Technica. I would highly recommend that mic. And that's USB also. आप USB की तरह भी वैसे यूज कर सकते हो. So ideally क्या होता है, जब आप रेजिस्टिव माइक यूज कर रहे हो, क्योंकि जो इसका कन्वर्जन होता है कैप्सूल में, इट्स अ वेरी फाइन सिग्नल, बहुत ही कम वॉल्यूम का होता है, इसलिए हमें एक साउंड कार्ड या कुछ लगता है, तो वो डायनामिक होने की वजह से फोन में इजीली काम कर जाता है विदाउट एनी एक्सटर्नल पावर सप्लाई. हैड इट बीन अ कंडेंसर, जैसे आईफोन्स में कनेक्ट होता है, एक और बहुत अच्छा माइक है, बट इट्स अ कंडेंसर. सी आफ्टर योर लर्निंग कर्व यू कैन मूव टू कंडेंसर. Initially, resistive mics will let you focus more on your voice. Secondly, coming to a DAW, trust me, मतलब हमारी आपकी बात हो रही थी उस चीज के ऊपर, तो please get over Audacity. I mean, it's a great editing software, ठीक है. एडिटिंग में ना सच में वो लॉजिक से भी बेटर है कहीं कहीं जगह. इट डज लाइक वेरी गुड कन्वर्जन्स, यूज इट, ठीक है. आई एम नॉट अगेंस्ट इट, मेरे को कुछ पैसे नहीं दे रहे लॉजिक वाले या कोई और, but I feel go for Reaper. Reaper is a fantastic software. It's an open source software. You can use it for 180 days. You can use it for free later also. I would highly recommend buying the software. It is very inexpensive. But आप पहले उसको use कर लो 150 दिन. If you are actually making use of it, go and make that purchase. Editing में वो easy होता है, आपको अगर वीडियो पे sync करना है तो आसान हो जाता है. हाँ, Reaper, yes. और is a fantastic software. Although मैं नहीं use करता हूँ, but मतलब मैं गलती से क्या जानबूझ के लॉजिक में मैं घुस गया था पहले ही, तो वो लॉजिक की बोट में मैं इतना आगे आ गया हूँ कि आई ट्राइड डूइंग दैट वंस, बट देन आई हैड टू सेल माय विंडोज लैपटॉप बिकॉज आई कुडंट गो बैक. तो आई फील इफ यू आर अ मैक यूजर, गो फॉर लॉजिक. और गैरेज बैंड में भी हो जाता है, बट अगर आप प्रोफेशनल थोड़े हो जाते हो आगे, लॉजिक ले लो, बिकॉज ऑडियो प्रोसेसिंग इज द नीड ऑफ द आवर. अगेन ऑडियो प्रोसेसिंग पे हम कुछ ट्यूटोरियल्स अब धीरे धीरे, आई एम रियली ट्राइंग टू गेट दैट थिंग आल्सो आउट, कि बेसिक EQ करना, बेसिक कंप्रेसर्स यूज करना. बाय द वे आई थिंक हर्ष शुड पुट दैट लिंक आल्सो, कि प्लगइन बुटीक में और इसमें UAD का एक कंप्रेसर इज फॉर फ्री राइट नाउ, एंड इट इज अ फैंटास्टिक कंप्रेसर. डेफिनेटली. एंड वन मोर थिंग, ये जो रीपर है ये दोनों में चलता है ना, अगर आप जैसे विंडोज और मैक. रीपर इज ओपन सोर्स, तो वो विंडोज, मैक, लिनक्स सब पे चलेगा और बहुत इजी चलता है. और मेरा ऑलमोस्ट 10-12 साल पुराना जो पहला वाला मैकबुक है उस पे भी चलता है और बहुत अमेजिंग चलता है. और लाइट सॉफ्टवेयर है ये. इट्स अ वेरी लाइट सॉफ्टवेयर एंड इट्स एन, सो यू कैन इवन कोड, कोडर्स कैन एक्चुअली कोड उसके अंदर जाके. ओह नाइस. वो बड़ा मतलब आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, बट इट्स अ वेरी नाइस सॉफ्टवेयर टू यूज. एंड इट हैज, बिकॉज क्यूबेस और बाकी जो सॉफ्टवेयर है ना वो बहुत, प्रो टूल्स हो गया, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स टू यूज. यस, ये तो क्यूबेस मैंने बहुत साल समझा, मुझे नहीं आया. लॉजिक फटाक से समझ में आया.
but Logic comes with a price tag of a Mac. So अब Mac Minis are very affordable right now, तो आप Mac Mini लेके भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं you need to get a high end MacBook or something. तो Logic would be like my second recommendation because ease of access है, use आप easily कर पाओगे, basic process, उसके अंदर plugins बहुत सारे आते हैं जो कि Reaper में limited आते हैं, obviously because they charge you for the laptop as well as the software. So Reaper में they are not charging you anything at all, but third party आप install कर सकते हो बहुत सारे softwares, plugins वगैरह आते हो तो yes. देखिए एक अच्छा preamp होना चाहिए आपके पास अपने plugins में, get a good compressor, 2 if possible, and you need a limiter and you need like a one measuring levels का. ये सब basically मैं आपको थोड़े टाइम बाद हम और भी कुछ करेंगे इसके साथ, but basic EQ और basic processing अगर आपने कर ली ना, you will understand what is the difference between your sound and the sound you're hearing on the platform, because they are all highly processed. Having said that, ऐसा नहीं है कि वो उनके unprocessed sample भी बहुत amazing सुनाई देते हैं. Processing will just add a little of toppings add करती है उसके ऊपर. Even adding to this, आपकी वेबसाइट में भी जैसे काफी ब्लॉग्स तो आपने डाली रखे हैं, साथ में as you mentioned कि आप एक वीडियो सीरीज भी शुरू कर रहे हो, so चैनल किस नाम से होगा, वो आपके नाम से या फिर on the company's name? We'll have to figure that out, but sure जब भी होगा मैं आपको बताऊंगा. Mostly I am going to start it, मतलब it would be a personal channel because उसमें म्यूजिक की भी बात होगी, प्रोग्रामिंग की भी. Okay. See, I mean I come from a part of the world where I've learned most of the things on my own, and YouTube पहले उतना सारी चीजें मिलती नहीं थी. हाँ उस टाइम पे तो yes. What I know I've learned through YouTube initially. फिर उसके बाद कुछ वेबसाइट्स है जहाँ से मैंने और नॉलेज गेन किया और एक्सपीरियंस से सबसे ज़्यादा नॉलेज गेन किया. बट मुझे ये लगता है ना कि ये सारी चीज़ें मतलब अब जो भी मेरे को जितनी भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, मैं चाहता हूँ वो चीज़ हम इम्पार्ट करें थ्रू वीडियोस, because that's the best engagement medium. Yes. Unfortunately for me, I have to really figure out that time. But today I'm committing on your channel only कि मैं करूँगा, because my only sincere thing of doing that is ताकि हमारी जो community है उसमें सब लोगों के लिए आसान हो. और प्रोडक्शन के प्रोग्राम, म्यूजिक प्रोग्रामिंग, प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग, इनके ना मैं फ्री ट्यूटोरियल्स करूँगा. So I don't want anybody to buy my course, or I mean I really don't want that. I don't need that right now. And hopefully कभी मैं वो करूँगा भी नहीं, because knowledge क्योंकि मेरे को भी जिन्होंने दी है, जैसे कुछ चैनल्स है जो मैं लिंक करूँगा उस चैनल में, उनके थ्रू मैंने लर्न किया है सब कुछ, और फिर अपने हैक्स पता करे, क्योंकि वही इंजीनियर का दिमाग चलता है. तो मैंने कहीं ना कहीं म्यूजिक थ्योरी क्रैक करी है कि वेस्टर्न और इंडियन म्यूजिक थ्योरी का एक इंटरसेक्शन मुझे पता है, जो शायद बहुत सारे लोगों को भी पता हो, बट कोई डालता नहीं है उस चीज़ को बाहर. सो आई एम गोइंग टू पोस्ट वीडियोज फॉर वीडियो प्रोड्यूसर्स, for voiceover artists, for musicians, for there could be different playlist for this particular there would be a lot of versatile content basically. Nice. And most of it is going to be audio initially, but then धीरे it might get into visuals also, which is also the natural trajectory of Voices Bazaar in the longer run. So वो भी कुछ हम explore करना चाह रहे हैं अभी. Great to know. So Samarth, it was a very insightful session. मतलब बहुत कुछ चीजें जानने को मिली about your journey, about the journey of Voices Bazaar. और मैं ये अपने सब्सक्राइबर्स, लिसनर्स को कहना चाहूँगा, व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि दिस इज नॉट आवर फर्स्ट एंड द लास्ट एपिसोड, बिकॉज हम एक सीरीज चालू करने वाले हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ टॉपिक्स आर देयर लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, तो खास करके से बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता. पर मुझे लगता है कि ये एक सेशन में इसके लिए एक अलग से सेशन ही हमें चाहिए बात करने के लिए. A lot of topics are there, home studio, और भी हम कई चीजें बारीकी से बात कर सकते हैं. So to end this conversation, we should end it on AI. ये मेरे को एक अलग से एपिसोड चाहिए इसके लिए. 2 मिनट का मतलब टीजर ही छोड़ते हैं. देखो ऑनेस्टली ना, फ्रॉम अ टेक्निकल स्टैंड पॉइंट ऑल्सो एंड फ्रॉम अ क्रिएटिव पर्सन स्टैंड पॉइंट, स्टॉप दिस, देयर इज अ फियर मॉन्गरिंग गोइंग ऑन. AI ये कर देगा, वो कर देगा. ठीक है, बिटकॉइन भी बहुत कुछ करने वाला था, बहुत सारी, गूगल ट्रांसलेट आया था बहुत साल पहले, वो ट्रांसलेटर्स की जॉब खराब करने वाला था. There's nothing like that. You work on your skill, be confident about it. And technology, अगर AI आ रहा है ना, trust me, your audio processing is very easy. मैं अभी एक पहला वीडियो में वही डालने वाला हूँ. I've figured out a fantastic free AI software जो आपके रूम की नॉइस को मैजिकली निकाल देता है. It's a free software. AI is, use it to your advantage. Definitely. What it is to do. But
अगर आपका स्किल बहुत अच्छा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है. ह्यूमन टच जो है ना, ह्यूमन टच वो नहीं जाना. इंसान का काम इंसान ही कर सकता है. That's great. So anyways, thank you so much for coming on this show. It was absolute pleasure. और ये जैसे मैंने कहा कि इस और भी हमारे ऐसे एपिसोड्स निकलने वाले हैं, और खास करके यही तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे बात हो सकती है. So thank you so much, and again I wish you all the best for everything. You're doing a great job. आपका जो वेंचर है हर चीज के लिए. थैंक यू सो And मच. it's always great to meet passionate people, especially audio enthusiasts. हाँ, ऑडियो दुनिया में ऑडियो और वीडियो वाले लोग हैं, हम ऑडियो वाले. ऑडियो वाले. सही सही. इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू, एंड आई होप कुछ वैल्यू इससे निकले लोगों के लिए. Definitely. Anybody who's listening to me wants to connect, you can always connect with me. I'm available on LinkedIn. हाँ, कभी थोड़ा लेट रिप्लाई कर दूंगा, but I'm always, my doors are always open for any artist who wants to get into this. Or I wish everybody all the best, and hope to see you on the platform, hope to see everybody else on the platform, and let's make this community grow now. I think it's high time now. Thank Wonderful. you, Harsh. Thank you so much. All right.